السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں اور دیوانیوں، ماہ رمضان 2022 کا یہ پروگرام ہے جس میں آپ تمام حضرات کو کچھ عملی باتیں اور اس کے ساتھ میں فقہی مسائل کا عظیم پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ آج ہم پہلے ایک وظیفے پہ بات کریں گے، اس کے بعد میں ایک آدھ دو حدیث پہ بات ہوگی اور پھر مسائل پہ بات کریں گے۔ بچے کی زبان میں لکنت ہو، ہکلاتا ہو بولنے میں، یا اس کا دماغ کمزور ہو کہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے زبان پر بھی اثر آتا ہو، تو اس کا گھر بیٹھا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن شریف کے آئینے میں کہ کانچ کی 7 پلیٹ الگ الگ لی جائے، ڈشز کانچ کی، گلاس کی، یہ جو اپنے چائے والے کپ کے ساتھ میں یوز کرتے ہیں وہ، اور اس پر علم نشرہ کی صورت زعفران سے لکھی جائے، اور اس میں آپ کو زیر زبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، الف لام میم نون شین رے ہے، اس طریقے سے راؤنڈ آپ کو پوری صورت لکھنی ہے۔ اس طریقے 7 پلیٹ لکھ لی جائیں، اور پھر روزانہ 1 پلیٹ پانی اس میں ڈال کر کے مکمل مٹھائی ہے اس کو پانی کے ساتھ میں مکس کر دیا جائے، اور پھر وہ پانی جس کو پرابلم ہے اس کو پلایا جائے، تو 7 دن تک یہ کیا جائے، تو پھر تھوڑی دیر انتظار کرے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں پھر دوبارہ ایسا عمل کرے، پھر سے بارہ ایسا عمل کرے، تو انشاءاللہ یہ جو زبانی یا ذہنی کوئی پرابلم ہو تو اس صورت کی برکت سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ گھر بیٹھے آپ بھی لکھ سکتے ہیں، ابھی قرآن شریف کھول کے جیسا اس میں لکھا ہے ایسا سلائی سے آپ زعفران سے راؤنڈ آپ لکھ دیجئے، تو آپ خود بھی عمل کر سکتے ہیں، اور کسی دیندار سے اگر لکھا کر کے عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے اوپر ہے، لیکن یہ کیا جا سکتا ہے بچوں کی دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ اب رمضان شریف کا دوسرا ہوگا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، تو اس میں مسلمانوں کو استغفار پڑھنا چاہیے، اور صرف استغفار پڑھ کے ہی کام نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہو گئے ہیں اس کو معاف فرمائے، اور ان گناہوں پر سچی پکی توبہ کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ گناہ توبہ کے صدقے میں معاف کر دیے جائیں، تو استغفار بکثرت پڑھا جائے، اور ساتھ میں توبہ اور استغفار بھی کیا جائے۔ صرف الفاظ کو دہرانا مقصود نہیں ہوتا ہے، کہ الفاظ دہرانے سے بھی ثواب تو ملتا ہے استغفار کا، لیکن صحیح معنوں میں استغفار یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی چاہی جائے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ آپ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے اس کی معافی چاہیں اور معافی مانگیں، اور آپ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو مکمل جو استغفار میں نے آپ کو سکھایا تھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
असरात बद का इजाला, कि कभी कभी जिन और शयातीन की नजरें लगती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। और कभी कभी खराब और हसद करने वाले लोगों की नजर लगती है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। कभी घर और मकान पे नजर जा सकती है, बच्चों पर भी आ सकती है, अमवाल पे भी जा सकती है, खाने पीने की चीजों पे भी जा सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर कुछ असरात हैं और नजर बद का शिकार है, जिसकी वजह से घर में रहने वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, सुकून और चैन मैसर नहीं आता, तो ये खास तौर पे इलाज उनके लिए है कि सूरह फातिहा 11 टाइम्स पढ़ी जाए, और हर मर्तबा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली सूरत को 11 टाइम्स पढ़ा जाए। एक मर्तबा मैं पढ़ के बता देता हूँ, जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 11 टाइम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। फिर से शुरू करेंगे। तो तमाम आयतें एक बार, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली आयत को 11 टाइम्स पढ़ा जाए। 11 मर्तबा में हर मर्तबा वो आयत 11 टाइम्स जाएगी। पानी पर दम कर लीजिए, वो पानी आप घर वालों को पिलाइए, और थोड़ा सा पानी कटोरे में रख करके उसमें उंगलियां डाल के आप अपने रूम में, अपने घर पर, बाहर, अंदर जितने रूम है सब पर छींटा दे दीजिए। तो ऐसे गलत असरात होंगे, तो इस सूरह पाक और इस वजीफे की बरकत से अल्लाह उसका इजाला फरमाएगा। तो ये एक बहुत बड़े फायदे की चीज थी कि जिसके ऊपर आप खुद अमल कर सकते हैं, और दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ में शेयर करके उनको भी आप ऐसे गलत असरात से बचने का तरीका बता सकते हैं। तो होना यही चाहिए कि आप खुद सीखिए और दूसरों को पहुंचाइए। बन सके तो आप खुद उसको थोड़ा सा लिख भी लीजिए अपनी नोट के अंदर, ताकि आप दूसरों को बता सके, आप भूल गए हो तो फिर दोबारा उसको याद करके दूसरों को पहुंचा सके। तो ये काम भी बहुत अच्छा काम है कि जिसमें आप मुसलमान लोगों को अपनी तरफ से भी फायदा पहुंचाएं। और फिर अपने थोड़ा सा किताब की बात कर लेते हैं। देखिए किताब है आपके सामने, देखिए कितनी अच्छी लगती है देखने में भी। अजहरुल मंतिक ये किताब है, और ये इसका टॉपिक जो है वो अकली उलूम पर है कि अकली दलाइल कैसे कायम किए जाएं। और ये जो किताब है वो ताहिर हुसैन हाफिज रफीक कोठीवाला की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है। इस किताब के अंदर 61 पेजेस है, और उन्होंने अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए इस किताब को प्रिंट करवाया है। और किताब दारुल के निसाब में पढ़ाई जाती है। आलिम और आलिमा बनने वालों के लिए ये किताब पढ़ाई जाती है। ये आपके सामने मैंने रखा। इसी तरह से ये दूसरी किताब है, आप देखिए अजहरुस सर्फ, पहला हिस्सा है उसका। पीछे से उसका आप अंदर से भी देखिए कि किस तरह से इस किताब को सजाया गया है। ये किताब जो है अरबी ग्रामर पर लिखी गई है, और उसमें 69 पेजेस हैं। और ये भी ताहिर हुसैन हाफिज रफीक कोठीवाला की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है, उनके मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए अरबी ग्रामर में लिखी हुई है किताब है। इसी तरह से ये किताब है आपके सामने, आप देखिए आगे से और पीछे से हमारा जो लड़कियों का दारुल बना है ना, उसका फोटो भी कायम किया गया है। ये जो बिल्डिंग है अपने जामिया मुइनिया अजहरुल उलूम लिल बनात की ये बिल्डिंग है। और ये बड़ी किताब है अजहरुन नहव। इस किताब के का हिस्सा अव्वल है ये भी ताहिर हुसैन हाफिज रफीक कोठी वाले ही की तरफ से इसको शाये किया गया है। इसमें सफ़हात 95 हैं, और इसका टॉपिक भी अरबी ग्रामर है। ये भी आलिम व आलिमा बनने वालों को किताब ये पढ़ाई जाती है। ये आपके सामने मैंने रखा। ये दूसरी किताब नहव,
ये हिस्सा 2 में है, उसका दूसरा हिस्सा है। जैसा आप देखिए, अंदर से भी देखिए कैसी ज़ेबा किस तरीके से ग्लोव्स पे के अंदर उसको प्रिंट किया गया है। और ये किताब जो है वो हाजी रफीक भाई बख्श, हमारे प्रेस्टन के, उनकी तरफ से इसको मरहुमीन की इसाले सवाब के लिए इसको शाये किया गया। तो मैं ये किताबों की एडवर्टाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़े सवाब का काम है। हम लोग तो इसकी लिखाई के पीछे अपना टाइम लगाते हैं, लेकिन पब्लिश के लिए हम लोग आपको मदऊ करते हैं कि साथ में पब्लिश का सवाब आपको भी मिल सके, लिखाई का सवाब हमको मिल जाए, पब्लिश का सवाब आपको मिल जाए। तो ये भी इसाले सवाब का और सदके जारिया का बहुत बड़ा काम है। अगर इसमें आप हिस्सा लेना चाहें तो ऐसे कई और टॉपिक्स के ऊपर किताबें बाकी हैं और वो उनको शाये करना है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपके सामने इन 4 किताबों की एडवर्टाइज रखी और बाकी की मैंने पीछे भी रखी थी। तो ये अरबी ग्रामर की बुक है और इसमें 89 पेजेस हैं। अब अपन बात करते हैं हदीस पर। कल हम लोगों ने ये बात की थी कि ज़कात, माल की देना, जो मालिक के निसाब होता है उसको देना। और मैंने आपको निसाब का भी फ़र्क बताया था कि निसाब 2 तरह के होते हैं। एक वो निसाब कि जिसकी वजह से ज़कात देना वाजिब होता है, और एक वो निसाब कि जिसकी वजह से किसी को ज़कात लेना जायज़ नहीं होता है। दोनों में फ़र्क मैंने आपको बताया था। अगर आप आज ये प्रोग्राम देखते हैं, कल का आपने नहीं देखा है, तो कल का दोबारा आप यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिएगा, मिसबाही वेलफेयर मिशन के अंदर, तो वो आपको प्रोग्राम दोबारा मिल जाएगा, फिर इसके साथ में मिलाएगा, तो आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी कि निसाब 2 तरह के हैं। एक वो निसाब कि जिसकी वजह से ज़कात देना वाजिब होता है, और एक वो निसाब कि जिसकी वजह से अहले ज़रूरत को ज़कात लेना जायज़ नहीं रह जाता है। और ये दोनों के ऊपर रिसर्च करना इस ज़माने में बहुत बहुत ज़रूरी है कि लोग प्रॉब्लम में कम होते हैं, प्रॉब्लम का इज़हार ज़्यादा करते हैं, और ईज़ी मनी के लिए लोग इसको एक धंधा बना करके चल रहे हैं, और दुनिया में अल्लाह के रिलीजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ पैसा देने ही को अपना जिम्मा मत समझो, उसके पीछे रिसर्च भी करो कि किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो अहले हक से है या नहीं है। इन सब की इंक्वायरी आपके लिए जरूरी होगी। आज मैं आपको कुरान की आयत से और हदीस से बताऊं कि जिस तरह से माल की ज़कात होती है, और कल वो माल भी मैंने आपको बताया था कि एक तो समन है और एक माल इजारत है। आगे जानवर तो चूंकि अभी रखे नहीं जाते हैं, इसलिए इसकी अभी कोई हाजत नहीं, इसलिए हम इस पर बात नहीं करते हैं। तो समन का मतलब था गोल्ड और सिल्वर, इसके ऊपर ज़कात होती है। रह गई करेंसी जो हम यूज में लाते हैं, तो वो दोनों के साथ में मिलती है। वो गोल्ड के साथ में भी जॉइंट होगी, उस निसाब मुकम्मल करेगी, और सिल्वर के साथ जॉइंट होकर भी निसाब मुकम्मल करेगी। चूंकि जो करेंसी होती है गोल्ड और सिल्वर ही से वो हिसाब में लाई जाती है, इस वजह से वो कैश जो मनी होती है उनको उसी के साथ में रखा जाएगा। इसी तरीके से आपका जो बैलेंस बैंक में होता है आपके नाम का, वो भी सब आपका ही है, भले बैंक में रखा हो, मगर आप चाहे तब ले सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, आप ही उसके मालिक और ओनर हैं, तो उसकी भी ज़कात आपको देनी है। तो ये सारे मसाइल आप याद रखें। और एक माले तिजारत होता है कि भाई बिजनेस हम कर रहे हैं तो स्टॉक के ऊपर भी ज़कात आती है, मगर तरीका मैंने बताया था कि स्टॉक अपना है वो कैसे मालूम किया जाए कि भाई जो कर्ज है वो आप देख लो कि जितना कर्ज है उसको डिडक्शन में रख दो। उसके बाद में देखो कि भाई माल तो 10,000 पाउंड का है और कर्ज तो अब 2,000 बाकी है, तो इसका मतलब ये 8,000 जो है वो हमारा अपना है और ये हमारे मुनाफे का है, तो उस स्टॉक के ऊपर 8,000 की ज़कात निकाली जाएगी। तो माले तिजारत पर और समन पर ज़कात होती है, और करेंसी को इसके साथ में मिलाया जाता है। उसको अभी अपने मसाइल में और वाज़े करने की कोशिश करेंगे। अभी अपने ज़मीन की ज़कात की बात कर रहे हैं कि ज़मीन से जो चीज़ उग कर आती है,
کھانے اور پینے کی اشیاء، تو ان میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اس زکوٰۃ کو عشر کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 141۔ اس کا حق دو جس دن کٹے، یعنی فقیر کو اس کا حق دو یا کھیتی کا حق نکالو جس دن اس کو کاٹا جائے، اور کاٹ کے وہ ریڈی ہو کر کے تیار ہو کر کے آپ کے پاس میں آ جائے، تو ان میں سے آپ 10واں حصہ الگ کر دو، یعنی 100 kg ہوا ہے تو 10 kg نکال دو اور وہ غریبوں کو جائے گا، 90 kg آپ کا رہے گا۔ 1000 kg آپ کے لیے ہوا ہے، جیسے رائس ہوا یا اسی طریقے سے ویٹ یعنی گیہوں ہوا، مونگ ہوئے، یہ بہت ساری چیزیں کھیتیوں میں یعنی گرو کی جاتی ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، تو ان سب میں آپ کو 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا واجب ہے، ضروری ہے، آپ کو دینا ہی پڑے گا، نہیں دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور نہیں دیں گے تو برکتیں چھین لی جائیں گی اور آئندہ پرابلم میں ڈال دیا جائے گا آپ کی کاشت کو۔ تو آپ تو 10 بچانا چاہتے تھے اور وہ پورا جو 90 آپ کا ہے وہ بھی چلا جائے گا، یعنی دوسرے سال کھیتی ہوئی ہی نہیں، بارش زیادہ ہو گئی اور سب ختم ہو گیا، یا پھر بارش ہوئی نہیں اور کچھ گرو نہیں ہو سکا۔ دو طرف سے پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی آفت آ جائے اور سب ختم ہو جائے، جیسے تیز ہوائیں چل جائیں، آندھیاں چل جائیں، پوری کھیتی کو اڑا کر کے لے جائے، تو ایسے کئی پرابلم آ سکتے ہیں۔ تو آپ تو بچانا چاہتے تھے کہ میں 10 کو بچا لے جاؤں، لیکن دوسرے سال کھیتی نہیں ہوئی تو وہ پورا 90 جو آپ کو ملا تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو اتنا یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کو پورا کرنا مسلمان پر ضروری ہوتا ہے، اور مسلمان اس میں آنا کانی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا اور پنشمنٹ میں بدل دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، آئندہ ملتا نہیں اور آپ پرابلم میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے معاملات میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جب آپ کو 100 دیا اور کہا کہ 90 تو رکھ لے، بس 10 میرے راستے میں دے دے، تو آپ کتنے بخیل ہیں کہ وہ 10واں حصہ بھی آپ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور 90 تو آپ کو دیا گیا تو 10 آپ چھوڑ دیجئے، اللہ کے راستے میں دے دیجئے، مگر اللہ تو آپ کو 100 دیا اور کہتا ہے کہ 90 رکھ لے میرے بندے، 10 دے دے، آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو نارمل اپنے زکوٰۃ نکالتے اس میں تو صرف 2.5% ہوتا ہے، تو اس میں تو 2.50 پاؤنڈ جیسے ہوا 100 کے پیچھے، تو وہ تو کتنا 40واں حصہ ہوا، اس کو 40واں حصہ کہا جاتا ہے، ہر 40 پر 1 پاؤنڈ، 40 پاؤنڈ پہ 1 پاؤنڈ، اور باقی 40 پہ 1 پاؤنڈ تو 2 پاؤنڈ ہوا، اور باقی رہ گیا کتنا 20، تو اس پہ 50 پہ 1.50 ہوا 100 کے پیچھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے کوشش کی، تو نے کمایا، میں نے تیری مدد کی، میں نے تجھے تجارت اور تیرے کام دھندے میں تجھے کامیاب کیا، اگر میں تجھے بیمار بنا دیتا، میں تجھے ڈسیبل کر دیتا، میں تجھے مجبور کر دیتا، تیرے دماغ سے سینس کو چھین لیتا، تجھے پاگل بنا دیتا، تو کیا تو ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، مگر جو تو نے کیا ہے وہ سب نعمتیں میری ہیں کہ اس کی وجہ سے تو وہاں تک پہنچا، اور جب وہاں تک پہنچا اور تو نے 100 کما لیا، تو ایسا کر کہ 97.50 بھی تو رکھ لے اور 2.50 فقیر کو دے دے۔ اب پھر بھی ہم بخیلی کریں تو کتنی، اللہ تو اتنی بڑی سخاوت کر رہا ہے کہ 100 دے کے کہتا ہے کہ 97.50 تم رکھ لو اور باقی جو ہے 2.50 فقیر کو دے دو، تاکہ تمہارا پیسہ بھی پاک ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اور اللہ نے دیا ہے تو اس کے حکم کے اوپر عمل بھی ہو جائے۔ مگر آدمی ایسا کرنے میں بھی بخیلی کرتا ہے، کبھی کبھی 2.50 بچانے میں بخیلی سے کام لیتا ہے، تو پھر پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کسی بیماری میں چلا گیا، کسی حادثے میں چلا گیا، کوئی لوٹ لے گیا، کوئی چوری کر کے لے گیا، سارا مال چلا گیا، کئی طرح کے مالی وبال ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، تو آپ تو بچانے جا رہے تھے 2.50 اور چلا کتنا گیا؟ وہ 97.50 جو تمہیں دینے کے لیے کہا تھا وہ بھی چلا گیا تمہارا، وہ جو ہے وہ سب چین کے بھاگ کے لے کے چلا گیا۔ تو
اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہمیں اس حکم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اس میں بخیلی سے کام لینا ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، آخرت میں تو ہو گئی. وہاں تو آپ کو جواب دینا ہی ہے، وہاں تو آپ چھوٹیں گے نہیں فرائض و واجبات کے سلسلے میں. لیکن دنیا میں بھی پرابلم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی طرح کے پرابلم آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے مال ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ بچانا نہیں ہوا، برباد کرنا ہوا. زکوٰۃ دینا یہ بچانا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا 97.50 مجھے دیا گیا ہے، وہ میرا محفوظ ہو جائے گا. نہیں دوں گا تو سب تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے نہ دے کر کے آپ بچا نہیں رہے ہیں، ایک تو گنہگار ہو رہے ہیں، فاسق بن رہے ہیں، اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں، اور خطرے کے اپنے آپ کو شکار بنانے جا رہے ہیں. تو یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے، صحیح حساب لگا کر کے اپنے مالوں کی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، سونے چاندی کی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور کھیتی کے اندر جو پکتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ جسے عشر کہا جاتا ہے وہ دینا چاہیے. میں حدیث سنا آپ کو. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی کل شیء اخرجت الارض العشر او نصف العشر، کہ زمین جس کو نکالے، گرو کرے، اور پیداوار جو ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر عشر ہے یا آدھا عشر ہے. عشر کا مطلب آپ نے اللہ کا پانی پلایا، جیسے ندی نالے چشموں سے پانی لیا، یا آپ کو جو ہے وہ آسمان سے پانی ملا بارش کا، اس سے کھیتی ہوئی ہے، تو آپ کو 10واں حصہ نکالنا ہے. اور آپ نے اپنے پیسوں کا پانی لگا، جیسے آپ نے ٹیوب ویل ہے، کنویں ہے، ویل ہے، اور اس میں موٹر وغیرہ رکھ کر کے اسی کے پانی سے آپ نے گرو کیا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو 20واں حصہ 5% نکالنا ہے. اس کو آدھا عشر کہتے ہیں، کہ 5% کے اوپر جانا، یعنی 100 کے اوپر سے آپ کو 95 رکھنا ہے، 5 دینا ہے، 5 kg دینا ہے. اور 10 کے اندر ہوتا ہے کہ 90 آپ کو لینا ہے، اور 10 kg اللہ کے راستے میں دینا ہے. تو آدھے عشر کا مطلب یہ ہوا کہ 5% پہ جائے گا، اور فل عشر کا مطلب ہوا 10% پہ جائے گا. اس مسئلے کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. اب آپ یہ غور کرو کہ کیا لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا کھیتیوں کی یہ زکوٰۃ لوگ نکال رہے ہیں؟ اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کو یہ مسائل معلوم ہوگی اور انہوں نے ایسا کیا ہوگا؟ نہیں کیا ہے تو عند اللہ مجرم ہے، چونکہ قانون پر عمل نہیں کیا، یہ علم نہیں سیکھا. ضرور نہیں ہے کہ نہ سیکھا اور عمل نہ کیا، سیکھنا یہ ذمہ داری تھی، اور سب کو ایسا کرنا تھا، نہیں کیا تو وہ خود اس کے ذمہ دار بنیں گے کہ انہوں نے علم کیوں نہیں سیکھا، اور ان کو مسائل معلوم نہیں ہو، اور انہوں نے غلط فیصلے اپنے مال کے سلسلے میں لیے. تو اب کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے آباوات کو نیک اعمال کے ذریعے بھی ان کو نکال سکتے، مگر جو ذمہ داریوں کی چیزیں ہیں نا، وہ اسی سے ادا ہوگی، وہ آپ کی چوائس پہ نہیں جا سکتی ہے. تو میں نے کل جو آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے نفل صدقات جو نکالتے ہیں، اس کی جگہ پر ان نفل صدقات کو آپ ان صدقات واجبہ میں بنا دو، اور یہ کہو کہ میں مہینے میں اگر 20 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں تو وہ نفلی صدقہ ہے، مگر ذمہ داری باقی ہے، تو نفلی ڈائریکٹ آپ کے کھاتے میں نہیں جاتا ہے، وہ سائڈ پہ رکھا جائے گا. حشر میں نجات دینے کا فیصلہ ہوگا تو وہ حساب میں آئے گا، ورنہ حساب میں نہیں آئے گا. اس لیے میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اب ان کی ذمہ داریوں سے نکالنے کے لیے آپ نفل صدقات نکالتے، اس سے بہتر ہے کہ نفل صدقات کو واجب میں بدل دو. یا اللہ، میرے باپ نے اگر کوئی عشر نہیں دیا تو
तो इतना पैसा मैं उसके उश्र में रखता हूँ। फिर दूसरी मर्तबा निकाला, अल्लाह उश्र में रखता हूँ, ये अल्लाह उश्र में रखता हूँ। इस तरीके से वो नाफिला सदकात जो हैं वो आपके आबाओ अजदाद की नजात का बाइस बनेंगे, जबकि आप उनकी तरफ से उश्र कह करके और ज़कात कह करके आप निकालें। तो फिर मैंने बताया कि फिर वो इधर के काम के लायक नहीं रहेगा। तो इधर वाले जो आपके वो सदका के पैसे इधर ही इस्तेमाल कर लेते हैं और खा लेते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो इस मसले को ज़ाहिर नहीं करेंगे। जो मसला मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं ना, उसको वो ओपन नहीं करेंगे, चूंकि उनको मालूम है कि उनका अपना नुकसान है, कि फिर वो वाजिब सदका बना देंगे तो फिर तो वो गुरबा मसाकिन के लिए जाएगा, तो यहाँ इस्तेमाल नहीं करके फिर बाहर जो अहले हाजत है उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो आजकल है ना, जो ये लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं कि कुछ मसाइल जो होते हैं ना, वो जानबूझ के उस पर नहीं जाते हैं कि उनका नुकसान न हो जाए, इसलिए नहीं बताते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल प्योर होकर के आपके सामने ओपनली बात करते हैं कि आप अपने आबा व अजदाद को गुनाहों से कैसे निकाल सकते हैं। उसका मैंने तरीका आपको बता दिया कि फिर आपके घर का हर सदका सदके नाफिला नहीं रहेगा, सदके वाजिबा बन जाएगा, और फिर जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उन्हीं में वो तक़सीम होगा और उनको आप गुनाहों से निकाल सकते हैं। ये उश्र के मामले में मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे आबा अजदाद ने इन चीज़ों पर अमल किया होगा। इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊँ हदीस के ज़रिए से। मिशकात बाबुल इन्फाक के अंदर ये हदीस है फ़स्ल सालिस में, कि एक आदमी बनी इसराइल का, पहले अगली कौमों का मुसलमान, तो वो जा रहा था रास्ते से, उसमें बदली में ये आवाज़ उन्हीं के पर जाकर के बरसों और उस आदमी का नाम बोला गया। तो ये आदमी हैरत में यार के बदली से ये आवाज आ रही है और नाम भी बताया जा रहा, तो ये बदली का फॉलो करने लगे। बदली जाति किधर है, तो वो बदली है ना, वो पहाड़ों की तरफ गई और वहां यानी बरसी, तो पहाड़ों के जरिए से पानी और एक खेत की जानिब और एक आदमी वहां काश्त कर रहा था, तो वो पानी वहां पहुंच रहा था, वो अपने खेत को पानी पिला रहा था। यह आदमी वहां पहुंचा, जाकर के उससे पूछा कि भाई मैं एक बात बताऊं, कि मैंने बदली से एक आवाज सुनी और उसमें ये नाम बताया गया, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने जो सुना था वही नाम इस आदमी का था। तो कहा तुम्हारा नाम तो वही है जो बदली से मैंने सुना है। बताओ तुम काम क्या करते हो कि तुम्हारी इतनी मदद की जाती है कि बारिश तुम्हारे खेत के लिए बरसाई जाती। उसने कहा कि और तो मैं कुछ नहीं करता हूं, मगर जब तुमने पूछ लिया तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे यहाँ जो कुछ होता है खेती में, जो ग्रो होता है और जो यानी पक के तैयार होकर के सामने आता है, तो फ़अतसद्दक़ु बिसुलूसिही, उसका 1/3 में अल्लाह के रास्ते में खैरात कर देता हूँ। या तो मैं, हमें तो 10वां कहा गया है ना, वो तो तीसरा हिस्सा ने 1/3 उसमें दे रहा है। 1/3 30% हो, उससे भी ज्यादा 33% हुआ कि 1/3 वो अल्लाह के रास्ते में दे देता है। वह आकुलो अना व याली तुलूसन, और 1/3 मैं और मेरे घर वाले खाते हैं, यानी मैं रख लेता हूं और वो हमारे खाने पीने में काम आता है। तो 1/3 अल्लाह के रास्ते में दे देता हूं, 1/3 में अपने लिए रख लेता हूं। वो अरुद्दुहाफिहा थुलुसहू, और तीसरा जो हिस्सा है उसको सीड और बीज के तौर पे रख लेता हूं। फिर आइंदा दोबारा इससे फिर फ्रोमिंग करता हूं, फिर मैं खेत में खेतियां उगाता हूं और फिर दोबारा वो अनाज उग करके आता है। तो इसने अपने माल के 3 हिस्से किए, 1/3 अल्लाह के रास्ते में दे दिया, 1/3 अपने लिए रखा, 1/3 दोबारा सीड के तौर पर उसने खेती में इस्तेमाल कर लिया। उसका ये मामूल था। तो उसकी वजह से बादल से कहा जा रहा है कि जाओ वहां चल के बरसो, कि सीधा पानी उसके खेत के अंदर जाए और वो अपने पौधों को पानी पिला सके। तो पता ये चला कि आदमी अल्लाह के रास्ते में देता है तो नुकसान में नहीं जाता, फिर में जाता है कि देखो बारिशें भी आ रही हैं और उसके उसकी उसकी खेतियों का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो न दे करके हम
فائدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ روک کر کے ہم اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. اس نقصان سے بچنا ہے تو آج ہی توبہ کیجئے. نہیں دیا ہے اسے اپنی زندگی میں دے ڈالیے اور دوبارہ ان مسائل میں کوئی کمی نہ آنے دیجئے. ایسے میں آپ کو ایک امتحان کا بتاؤں کہ کبھی کبھی اللہ مال دیتا ہے تو کبھی دے کے بھی امتحان لیتا ہے, کبھی لے کے بھی امتحان لیتا ہے. مال دے کے امتحان کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت مالدار بنا دیا اور اس پیسے کی وجہ سے پھر آپ آوارہ ہو گئے اور آپ گناہوں میں مبتلا ہو گئے, آپ عیاشیوں میں لگ گئے, نافرمانیوں میں لگ گئے. تو دولت تو دی اللہ نے, مالدار تو آپ کو بنایا اللہ نے. یہ مت سمجھو کہ تم اپنی کوشش سے بن گئے. آپ تو کوشش ہی کر سکتے, اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں ڈوب جاتے, بالکل 5-50 ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں کہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ملینر بن جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوا کہ ایک جانب ایک آدمی ہے جو تھا سب چلا گیا اور ایک آدمی کو کچھ نہیں تھا اور بزنس کر کے ملینر بن گیا؟ تو پتہ ہے چلا کہ یہ فیصلے کیا ہے. وہ جسے چاہتا ہے مال میں اضافہ عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو ہے, اور کسی سے مال لے کر کے آزما جاتا کہ میں لے لوں تو یہ صبر کرتا ہے, یہ میری طرف پلٹ کے آتا ہے, توبہ کرتا ہے, میری بارگاہ میں سر جھکا کے رکھتا ہے, مجھ سے راضی رہتا ہے. تو اس طرح سے کبھی کبھی لے کر بھی ہوتا ہے, کبھی دے کر بھی ہوتا. تو اسی لیے اگر اسلامی تعلیم کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے نا تو آدمی پرابلم میں نہیں جائے گا کہ بھئی آیا ہے تو اللہ کا شکر ہے, میں شکر ادا کروں گا. تو کیا شکر میں گناہ کروں گا؟ شکر میں نافرمانی کروں گا؟ شکر میں عیاشی کروں گا؟ نہیں, شکر میں یہ نہیں ہوتا ہے. شکر میں تو رب کی تعریف ہوتی ہے, رب کی عبادت ہوتی ہے, رب کی بندگی ہوتی ہے, اس کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے, اس کے دین کے اٹھانے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. یہ سب کیا جاتا ہے. بھلائی کے کام کیے جائیں تو شکر ہے, نافرمانی اور گناہ یہ رب کا شکر نہیں. تو اسلامی تعلیم پر عمل کیا جائے نا تو آدمی ہر جگہ پر سنبھل کے رہتا. مل جائے پھر بھی پرابلم میں نہیں جاتا, نہ ملے پھر بھی پرابلم میں نہیں جاتا ہے. نہیں ملتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اس سے مانگتا, پھر اسے ملتا ہے, اور مل جاتا ہے تو شکر گزاری میں نکلتا ہے, تو گناہ سے بچ جاتا ہے. تو اسلامی تعلیم آپ کو ہر جگہ پرابلم سے بچاتی ہے. اپنی چوائس پر عمل کرنے جاؤ نا تو وہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے. تو کیوں بھائی پرابلم جان بوجھ کے کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ اللہ و رسول کی تعلیم کی طرف آ جائیے تاکہ پرابلم ہو ہی نہ, اور ہمارے حق میں جو فیصلہ ہو وہ ہمیں منظور ہو جانا چاہیے. تو کبھی دے کے امتحان ہوتا ہے, کبھی لے کے امتحان ہوتا ہے. میں اس کو آپ کو بتاؤں کہ دیکھو کیسے. ایک ثعلبہ کر کے ایک صحابی تھے, بعد میں پتہ نہیں وہ پہلے سے ایسے رہے یا بعد میں ایسے ہو گئے, پھر ان پر منافق کا ٹائٹل لگا اور پرابلم میں چلے گئے. انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ حضور, مشکات میں حدیث ہے کہ حضور میرے لیے دعا کر دو, میں مالدار بن جاؤں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ, جتنا اللہ دیا ہے اس پر شکر گزاری کر سکو یہ بہتر ہے زیادہ مال سے کہ جس میں شکر گزاری نہ ہو, گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. تو کیوں ایسا مانگتے ہو؟ اس سے فضل مانگو, اس کی رحمت مانگو, زیادہ زیادہ کی بات مت کرو. مگر وہ 2-3 بار جب انہوں نے ضد کی نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اگر کوئی ضد کرتا تھا تو پہلے ایڈوائز کر دیتے تھے, پھر نہ مانے تو پھر اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. تو حضور نے اس کے لیے مال کی کثرت کی دعا کر دی. پھر اس کے مال جو ہے بکریاں ہیں, گائیں ہیں, اونٹیں ہیں, جو بھی وہ رکھتا تھا, اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ پہلے وہ حضور کے پیچھے 5 وقتہ نماز جماعت سے پڑھتا تھا, اب اس کو دور نکل کے جانا پڑا. تو 1-2 نماز میں آتا, باقی نمازیں چھوٹ گئی. پھر اور دور چلا گیا تو اب کسی نماز میں نہیں آتا, جمعہ چلا آتا تھا. اور پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا نا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عامل کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کے پاس سے زکوٰۃ لے کر کے آؤ. وہ گئے زکوٰۃ لینے کے لیے. تو زکوٰۃ کیا دیں گے, ان کا حساب لگا تو ہزاروں میں جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے ٹیکس جیسا لگتا ہے, میں سوچوں گا, بچاروں گا, بعد میں دوں گا. زکوٰۃ نہیں تھی. اور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اس پر نفاق کی آیتیں بھی نازل ہو گئی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو حضور نے نہیں لی اس کی زکات، تو انہوں نے بھی نہیں لی۔ پھر عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ لے کیا، پھر انہوں نے بھی نہیں لی، عثمان غنی کے زمانے میں وہ بڑھ گیا۔ لیکن یہ کہ امتحان اور آزمائش پیسے سے ہوئی تو ہلاک و برباد، حضور نے پہلے ہی منع فرما دیا تھا۔ تو رب سے اس کا فضل مانگو، صرف دولت مت مانگو، ثروت مت مانگو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو باپ دادا پہلے کے ہیں اور جو اپنے آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو نا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ عثمان غنی کا خزانہ دینا۔ یہ دعا ایسے نہیں کہتے کہ اللہ مال دینا، دولت دینا، کروڑ پتی بنا دینا، ایسی دعا نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے، اے اللہ حضرت عثمان، مطلب یہ ہوا کہ دولت ملے تو ہم شکر گزاری کریں، تیرے راستے میں دیں۔ انہوں نے جیسے فیصلے اپنے مال سے کیے ہم کر سکے، عثمان غنی مانگتے تھے، قارون اور فرعون کا خزانہ نہیں مانگتے تھے۔ اور آج ہمارا ہے بس اللہ مال دے دے، مال دے دے، مال دے دے، یہی مانگتے، یا ہلاکت و بربادی مانگی۔ تو اس لیے دعا بھی صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، مانگتے وہ مل جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا مانگوں اور کیسے مانگوں، سلیقہ بھی اس میں چاہیے۔ تو ہمارے باپ دادا جو پہلے کے ہیں وہ بھلے کم پڑھے لکھے تھے، مگر کچھ باتیں ان کی اچھی سینس میں شمار ہوتی ہے کہ وہ دولت میں یہی مانگتے تھے کہ اللہ حضرت عثمان غنی کا خزانہ دینا، تو اس میں پرابلم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہوا، میں پرابلم کی بات کر رہا ہوں، تو دے کر بھی ہوتے ہیں آزمائش اور لے کر بھی ہوتی تھی۔ اس کو دیا صالبہ کو تو وہ شکر گزاری نہ کر سکا، بعد میں نفاق کی آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کی زکوٰۃ کو بھی کبھی قبول نہیں کیا گیا اور پھر ویسے ہی مر گئے۔ تو اسی طرح سے اب بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی برس والا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ برس مانے وہ کوڑ کی بیماری جس میں چمڑی نکل جاتی ہے، وائٹ ہو جاتی ہے سکین، تو اس کو کہتے ہیں برس کی بیماری۔ تو ایک وہ برس والا تھا، ابرس آدمی تھا، ایک گنجا جس کے بال نہ ہو، بالکل بال نہ ہو بدن کے اوپر، اس کو گنجا کہا جاتا ہے، تو وہ گنجا تھا۔ اور ایک اندھا جس کی آنکھ نہیں تھی، بلائنڈ تھا۔ تو یہ تینوں پرسن کا اللہ نے امتحان لیا۔ ہمارا آقا فرماتے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا اللہ نے امتحان لیا۔ فرشتے کو اللہ نے انسان کی صورت میں اس کے پاس میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس میں آیا، پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی چمڑی چاہیے، یہ برس کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے، گھن کرتے ہیں، مجھے تو اچھی چمڑی چاہیے۔ اور تو فرشتے نے اس کو ہاتھ پھیرا، اس کی چمڑی اچھی ہو گئی، اور پھر کہا کہ مال کیا چاہیے؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ اونٹ یا گائے میں دونوں میں سے کوئی ایک اس نے مانگا، تو اس کو پریگننٹ اونٹ یا گائے دی گئی، پھر اس سے بچے پیدا ہوئے، اتنے ہوئے، وہ ملینر بن گیا، مالدار ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں گنجا جو ہوتا ہے تو اس کے پاس میں فرشتہ گیا، اس سے پوچھا بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہا میرے بال وغیرہ نہیں ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، تھوڑا سا آپ اگر کر سکتے ہیں تو مجھے بال عطا فرما دو تاکہ تھوڑا سا حسن بڑھ جائے۔ تو فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے بدن پہ بال آ گئے اور اچھا بال والا ہو گیا۔ مال مانگا تو کہا اس کو اونٹ یا گائے دونوں میں سے کوئی ایک، انہیں ادلا بدلی ہے حدیث میں پرفیکٹ نہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو گائے ملی، ایک کو اونٹ ملا، چلو اپنے گائے مان لیتے، اس کو گائے ملی، پریگننٹ گائے تھی، اس سے بچے پیدا ہوئے، اتنے بڑے مال میں برکت ہوئی، وہ ملینر بن گیا۔ اب اس کے بعد میں وہ اندھے کے پاس میں گیا، اندھے سے پوچھا بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا یار آنکھیں نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، کیا کروں، ہمیشہ اندھیرا چھایا رہتا ہے، تھوڑا سا اگر تم سے ہو سکتا ہے تو دعا کر دو نا مجھے آنکھ مل جائے۔ تو فرشتے نے اس کے چہرے پہ آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں آ گئی، وہ بینا ہو گیا۔ مال کیا چاہے تو بکری اس کو دی اور اس سے کہا برکت کی دعا دی، اور بہت بکریوں سے ملینر ہو گیا، سب ہو گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر کے آزما رہا کیا وہ کامیاب ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پھر فرشتہ وہ پہلا جو کوڑی آدمی تھا نا جس کی چمڑی پرابلم میں تھی، تو یہ فرشتہ اسی صورت میں اس کے پاس میں آیا اور آ کر کے کہتا ہے ارے بھائی میں
प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास में सवारी नहीं है, आप कुछ मेरी मदद कर दो ना, ताकि मैं अपने सफ़र में आसानी से अपने मकसद को पहुँच जाऊँ। तुम भी पहले ऐसे ही थे, तुमको अच्छा कर दिया, माल दिया, मेरी मदद कर दो। तो उसने इनकार किया कि नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम तो पहले ही से ऐसे हैं, हम कुछ गरीब वगैरह नहीं थे, कोई बीमारी हमको नहीं थी, सब भूल गया। हालांकि इसी से अल्लाह ने उसको निकाल करके दिया, मगर वो इनकार, बीमारी का भी इनकार कर रहा है, गरीब था उसका भी इनकार कर रहा है, नहीं दिया, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, हमारे पास नहीं है, नहीं दिया। तो उसने कहा कि अच्छा, तो फिर ठीक है, जैसे तुम थे, अल्लाह तुमको ऐसा कर दे। फिर उसके बदन के अंदर बर्स की बीमारी आ गई, और उसके जानवर थोड़े थोड़े करके सब हलाको बर्बाद, फिर कंगाल हो गया। दिया अल्लाह ने दे करके, और फिर इम्तिहान लिया तो कामयाब नहीं गया, तो सब फिर छीन लिया गया। फिर वो गंजे के पास में गया, गंजा बन करके, फिर कहा कि यार मैं मुसाफिर हूँ और मैं सफ़र में थोड़ा-सा प्रॉब्लम में हूँ, मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। पहले तुम भी ऐसे ही थे, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा कर दिया, तुम्हें तुम्हारी मदद की माल से, और तुम इतने पैसे वाले हो गए, थोड़ी मेरी मदद कर दो, मैं सफ़र में अपने मकसद को पहुँच जाऊँ। उसने बीमारी का भी इनकार किया, गरीबी का भी इनकार किया, और इसको देने से भी इनकार कर दिया। तो फिर फरिश्ते ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इनकार करते हो तो जैसे तुम थे ऐसे अल्लाह तुमको बना दे। फिर ये गंजा हो गया, बाल चले गए, और फिर उसका माल भी थोड़ा-थोड़ा करके हलाको बर्बाद हो गया, और फिर फ़कीर बन गया। माल, इम्तिहान, आज़माइश, नहीं ठीक से रहा तो सब गया। फिर वो अंधे के पास में गया, अंधे से उसने अंधा बन के गया, और सवाल किया, भाई मैं ज़रूरतमंद हूँ, हाजतमंद हूँ, मुझे अपने सफ़र में जाना है, थोड़ी-सी मेरी मदद कर दो ना। तो उस अंधे ने क्या कहा कि ये देखो, ये सब कुछ है, वो अल्लाह का है। तुमको चाहिए तो सब ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। हाँ, मैं अंधा था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे रब ने मुझे आंखें दी, और मेरे रब ने मुझे मेरे माल में बरकत अता फरमाई, सब कुछ उसका है, उसके नाम पर तुम आए हो, सब ले जाना चाहो तो सब ले जाओ, जितना तुम्हें चाहिए ले जाओ, मैं तुम्हें किसी चीज से नहीं रोकूंगा। तो फिर फरिश्ते ने इज़हार किया कि हमें तुम्हारे माल की हाजत नहीं है, हमें तो सिर्फ इम्तिहान और आजमाइश के लिए भेजा गया था। तो उन दो ने मक्कारी की है, तो उनको प्रॉब्लम में डाल दिया गया, और तुम अपने इम्तिहान में कामयाब रहे, तो अब तुम्हारे माल में अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। तो इसका माल भी सलामत रहा, आंखें भी सलामत रही, और कुछ गया भी नहीं, और ज्यादा मालदार हो गया वो सब। फिर वो दो के साथ जो सब कंगाल बना दिए गए। तो कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। दोनों जगह पर इंसान प्रॉब्लम में जा सकता है। प्रॉब्लम से बचने की एक ही सूरत है कि अपनी चॉइस पे फैसलों को मत डालो। इस्लाम ने हर फैसला पहले से करके बता दिया है, महफूज तरीके हमें सिखा दिए हैं। हमें इस्लाम के महफूज तरीकों पर आ जाना चाहिए कि जब माल मिले तो हम गुनाह से बचेंगे, नाफरमानियों से बचेंगे, बल्कि और ज्यादा इताअत करेंगे, और ज्यादा शुक्रगुजारी करेंगे अल्लाह के माल को, उसके दीन को आगे बढ़ाएंगे, उसे बुलंद करेंगे, उसकी अजमतों को दो करने की कोशिश करेंगे। तो ये शुक्रगुजारी होती है। और फिर उसमें माल जाता नहीं है, बल्कि माल में और इजाफा होता है, माल और बढ़ा दिया जाता है। सदके से माल ज़ाय नहीं होता है, सदके से माल में इजाफा किया जाता है, माल को बढ़ाया जाता है। युरबिस सदक़ात, अल्लाह फरमाता है सदक़ात में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाता है, इजाफा फरमाता है। दुनिया में कोई आदमी फजूल खर्ची से बर्बाद हो जाता है, कोई आदमी किसी और गुनाहों में मुलव्विस होकर बर्बाद हो जाता है, अय्याशियों में लग के बर्बाद हो जाता है। कभी किसी के बारे में सुना है कि उसने अल्लाह के रास्ते में सखावतों से काम लिया और सखावत की वजह से बर्बाद हो गया? एक एग्जाम्पल नहीं ला सकते, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया युरबी सदकात, सदकात में वो इजाफा फरमाता है। मैं एक बात बहुत पुरलुत्फ बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कि हज़रत राबिया बिसरिया रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हा, ये बहुत सूफिया थी, और वलियों में उनका शुमार होता है। तो
अल्लाह की ज़ात पर एतमाद और भरोसा कि युर्ब सदाकत, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह बढ़ाता है, दो तो बढ़ाता है, 10 गुना तो कम से कम मिलेगा, और ज़्यादा अच्छी नीयतें हों तो ज़्यादा भी मिल सकता है। उनके यहाँ कुछ मेहमान आए, 10 के करीब मेहमान थे। तो खाना एक ही आदमी का था। अब क्या करें, 10 मेहमान को खिलाना है, अलग से कुछ है नहीं। तो लौंडी ने आकर के कहा कि माई, खाना एक आदमी का है, 10 मेहमान हैं, खाना नहीं खिला सकते, क्या करेंगे हम? तो आपने फरमाया कि ऐसा करो, कोई फ़कीर बाहर नज़र आए ना, तो वो एक आदमी का खाना उसको दे दो। अब वो एक का भी गया, तो उसने लिया, बाहर कोई फ़कीर मिला तो उसको बुला के लिया, लो ये ले जाओ, खाना तुमको हमने दिया, सदका किया। वो फ़कीर ले के चला गया। अब तो कुछ भी नहीं है, घर में कुछ है ही नहीं। 10 मेहमान हैं और घर में कुछ नहीं है। आप मुंतज़िर हैं हज़रत राबिया बिस्रिया कि अल्लाह ने युर्बी सदाक़ात फरमाया, दुनिया में कम से कम 10 गुना बदला देता है। तो मैंने एक आदमी का खाना था वो दे दिया, तो बदले में 10 तो दुनिया में मिलेगा। मेरे 10 मेहमान की मुझे मेहमान नवाजी करनी है कुछ नहीं, मैंने एक का सदका कर दिया, 10 आएगा। थोड़ी देर के बाद में एक आदमी 3-4 आदमियों का खाना लेकर के आया कि माई ये हमारे घर से भेजा है, कितने आदमी का खाना का? 3-4 का। नहीं नहीं, वो हमारा नहीं, दूसरे दूसरे फकीरों को दे दो, दूसरे जरूरतमंद को पहुंचा दो। उन्होंने नहीं लिया। तो लॉन्डी ने पूछा कि माई ऐसा नहीं, नहीं अपना नहीं है, वो मैं जानती हूँ अपना नहीं है, छोड़ दो उसको। फिर दूसरा आदमी आया थोड़ी देर के बाद में, वो 10 आदमियों का खाना लेकर के थाल में सब रख करके आया और कहा कि लो हमारे यहाँ से आपके यहाँ ये खाना बतौर तोहफा के दिया जाता है। तो कहा कितने आदमी का खाना है? कहा वो 10 आदमियों को इनफ हो जाएगा। तो कहा ठीक है, लो अपना है। और फिर मेहमानों को खिलाया, उनकी मेहमान नवाजी की। जाने के बाद में वो नौकरानी जो खादिमा है वो पूछती है कि माई ये समझ में नहीं आया कि एक आदमी का खाना था आपने दे दिया, और फिर वो आदमी 3 आदमी 4 आदमी का खाना लेके आप कहते हो हमारा नहीं है, आपने छोड़ दिया, ये 10 वाला आया था, कहते ठीक है ये ले लो अपना। ये कैसे आपने मालूम किया? कहा पगली, तुमको मालूम नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया कि 1 2 तो अल्लाह 10 देगा, कम से कम इतना तो वादा है। ये तो दुनिया में आखिरत में 100 गुना मिलने वाला है। तो मेरे मेहमान थे मेरे पास में, एक ही आदमी का खाना था, मैंने कहा मैं अल्लाह के रास्ते में दे देती हूँ। तो 10 मेहमानों का खाने का इंतजाम तो चाहिए ना, तो वो एक जाएगा तो 10 आएगा ना, तो इसलिए मैंने एक दिया, तो वो 10 का इंतजाम अल्लाह की तरफ से ये किया गया। तो एतमाद, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना, तो खुद हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान जिस तरह से अल्लाह परिंदों को रिस्क देता है कि वो खाली पेट जाते हैं, भर पेट वापस आते हैं, फिर दूसरे दिन खाली पेट जाते हैं, भर पेट वापस आते हैं, अल्लाह ताला उनको खाना देता है, रोजाना देता, वो लेके वापस थोड़ी ना आते कि चलो आज खाना ज्यादा मिल गया तो थोड़ा सा और जाकर के उसको जमा कर लेते, कल काम आएगा। नहीं करते, जितना खाना खा लिया उठ के चले गए, दूसरे दिन अल्लाह पर छोड़ते हैं कि आज खिलाया तो कल नहीं खिलाएगा। तो उनका एतमाद है तो उनको मिलता है। तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं अगर हम भी अल्लाह की जात पर कमा हक़हू एतमाद करना सीख जाए ना, तो जैसे अल्लाह परिंदों को रोजी देता है हमें भी देगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो आदमी तकवा परहेजगारी अपना लेता है, अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल करके जिंदगी गुजारता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, हम उसके लिए मखरज बनाते हैं, निकलने की जगह अल्लाह की तरफ से तय होती है। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रिस्क देते गुमान भी नहीं होता कि उसको देगा। जैसे हमारे आला हजरत खुद फरमाते हैं दस्ते गैब के बारे में कि आजकल दस्ते गैब का मतलब ये समझते हैं कि कोई ला करके हमको पैसा दे जाए, ऐसा नहीं होता। दस्ते गैब का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से वक्त जरूरत आपकी मदद की जाए, बेगर मांगे मदद मिल जाए, ये है दस्ते गैब। हमारा हजरत फरमाते हैं कि अरब शरीफ से किसी आदमी का खत मुझे पहुंचा जिसमें उस आदमी ने 50 रुपये का मुझसे सवाल किया था। वो जरूरतमंद था, उसकी पहचान होगी, तो उसने खत के जरिए से उस जमाने में लिख के भेजा कि मुझे आपसे उम्मीद है, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ, तकलीफ में हूँ, आप मेरी मदद फरमाएंगे, मुझे 50 रुपये की हाजत है, आप मुझे 50 रुपये अता फरमाएं। तो अल्लाह से फरमाते कि मेरे पास उस वक्त था कुछ नहीं, अब मैं लेकिन उसने मांगा है तो मुझे देना था। तो क्या हुआ,
तो फरमाते हैं कि मैं उसी फ़िक्र में था कि चलो उसको भेजो, आ जाए तो भेजो, इंतज़ाम हो जाए तो भेजो। इतने में कहते कि भाई बॉम्बे से एक सेठ साहब आए और आकर के उन्होंने ₹51 का मुझे तोहफ़ा नज़राना पेश किया। तो मैंने ये समझ के ले लिया कि चलो फिर उस भाई ने हमसे माँगा है ना, उसका इंतज़ाम हो गया। फिर मैंने क्या किया कि वो 50 का मनी ऑर्डर बनवाया और एक पहुँचाने का उस ज़माने के हिसाब से एक का खर्च हुआ, तो 51 मिला था, तो एक जो है वो पहुँचाने का खर्च और 50। तो कहते हैं कि ये देखो ज़रूरत थी, एक मुसलमान की ज़रूरत पूरी करना चाहता था, मेरे पास में नहीं था, मैं इंतज़ार में था और अल्लाह ने मेरे लिए इंतज़ाम फरमा दिया, यहाँ तक कि उसको भेजने के लिए जो चार्ज था ना, उसका भी इंतज़ाम हो गया। तो ये होता है दस्ते गैब कि आप अच्छे बन के रहो, इबादत गुजार बन के रहो, अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल करके रहो, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी ज़रूरतें होंगी तो अल्लाह ताला खुद किसी के दिल में डालेगा और वो आपके लिए मददगार बन के आएगा और आपकी मदद होगी और आपकी उस ज़रूरत को पूरा कर दिया जाएगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि आपके ख्याल में भी नहीं था कि वो मुझे देगा और आकर के दे के चला गया और काम हो गया। ये दस्ते गैब है। अल्लाह की ज़ात पर एतमाद और भरोसा करना हमें सीख चाहिए। चलो अपने मसाइल पे आते हैं, थोड़ा-सा टाइम अपने पास है, अपने मसाइल पे भी बात करते हैं। देखो डायमंड्स जो हैं, वो बड़े कीमती होते हैं कि कभी-कभी आपने रिंग लेने जाओ ना, तो रिंग सिल्वर की हो या प्लैटिनम की हो या गोल्ड की हो, तो गोल्ड जो है उसमें बड़ा इनाम होता है। 1 आध 2 ग्राम से ज़्यादा भी नहीं होता है। मगर आप अंगूठी लेने जाओ तो 4,000 की, 5,000 की, 10,000 की, जैसे-जैसा उसमें डायमंड उस हिसाब से उसकी कीमत होती है। तो उसमें ज़कात कैसे निकालेंगे? तो इस्लाम में डायमंड्स जो है वो पत्थर की किस्म में से है, उसके ऊपर ज़कात नहीं आती है, उस समझ में नहीं जाता है। वो तिजारत में आए तो फिर तिजारत के हिसाब से निकाली जाएगी, वो बिज़नेस शौक में चला जाए तो अलग बात। लेकिन आप पहनने के लिए तो तिजारत थोड़ी करते हैं ना, आप तो यूज़ कर रहे हो उसको। तो डायमंड के ऊपर ज़कात नहीं है। तो भले रिंग आपकी 4,000 पाउंड की है, मगर आप देखेंगे कि उसमें गोल्ड कितना है, तो जितना गोल्ड है उसी की हिसाब से आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। 1 ग्राम है तो 1 से, 2 ग्राम है तो 2 के हिसाब से आप निकालेंगे। 4,000 का वैल्यू उसके डायमंड की ज़कात नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा मसला है कि हमारे इस मुल्क में आमतौर पे बच्चियां जो हैं वो वाली चीजों को पसंद करती है कि जिसमें गोल्ड और सिल्वर तो बिल्कुल मामूली सा होता है, ज्यादा कीमत हंस की होती है। तो उसमें ज़कात में सिर्फ आप गोल्ड और सिल्वर ही को हिसाब में लाएंगे, डायमंड चाहे कितना भी कीमती हो वो हिसाब में नहीं आएगा, इसलिए कि उस पर ज़कात नहीं होती है। दुर्र मुख्तार जिल्द सोम सफा नंबर 220 पर यह मसला लिखा गया है। साल पूरा हो जाए ना तो ज़कात निकाली जाती है। तो साल का मतलब क्या है? साल पूरा होना, 1 ईयर गुज़र जाए तो ज़कात निकालनी है, तो 1 ईयर का मतलब क्या हुआ? 1 ईयर से मुराद इस्लामी साल है। तो अंग्रेजी साल से 10 दिन कम होता है। तो फरमाया गया कि इस्लामी साल आप लेके चलेंगे। इस्लामी साल का हिसाब लगाएंगे, अंग्रेजी सालों का हिसाब नहीं लगाएंगे कि चंद सालों के बाद में फिर है ना अंग्रेजी साल एक एक साल कम होता है, इस्लामी साल 1 साल बढ़ जाता है। आपको खास इसका ख्याल रखना है कि अंग्रेजी सालों का नहीं, अपने इस्लामी साल कमरी साल का एतबार होगा जिसमें 10 दिन अंग्रेजी साल से कम होता है। ये फतवा हिंदी अब ज़कात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 175 पर यह मसला लिखा हुआ है। जो माली के निसाब है, अगर दरमियाना साल में कुछ माल है उस जिन्स का हासिल हो जाए, तो उस नए माल का जो साल है वो यही साल चलेगा, नए माल का नया साल नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे आप रमजान रमजान तो रमजान एग्जाम्पल के लिए अभी तो सभी लोग रमजान में चले आए कि कोई जरूरी नहीं कि सबका साल रमजानी से शुरू हो, मगर क्या करेंगे लोग इजी के लिए रमजान पे चले जाते हैं ना। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी जिंदगी में एक जक़ात एक्स्ट्रा दे देनी चाहिए, कुछ भी अमाउंट एक्स्ट्रा दे देना चाहिए, गौर करके भाई पहला सबसे पहला मेरे पास चूंकि साल आपने याद नहीं रखा ना, इसलिए साल भूल गए हैं तो फिर क्या मालूम कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ हुआ है। आप तो रमजान सब
ले आए हैं, तो हर एक को एक आध ज़कात जो है एक्स्ट्रा निकाल देनी चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो शक वाला निकल जाए। तो अपने रमज़ान पहली तारीख आपका साल खत्म होता है, एक एग्ज़ाम्पल। अब ये वहीं से साल आपका शुरू भी होता है, रमज़ान की पहली तारीख से। तो रमज़ान से रमज़ान तक में दरमियान में जो कुछ आए, तो बिगिनिंग और एंड देखा जाएगा, दरमियान में जो आए सबको इनके साथ में मिला दिया जाएगा। इवन के अगर पहली रमजान से पहले एक आध दिन पहले भी अगर आपको आपका वेजिस मिला, तो उसकी भी ज़कात आप निकालेंगे, इसलिए कि एक दिन पहले आपको मिला है, तो ये साल के अंदर में आ गया। जैसे टैक्स का साल होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि मार्च टू मार्च अगर वो लेके चलते हैं, तो दरमियान में जो भी आएगा सब टोटली बिगिनिंग टू एंड के अंदर का सब एक के साथ में मिलाया जाता है। इस्लाम में भी ऐसा ही है कि बिगिनिंग से एंड तक में जो कुछ आएगा सबका अलग अलग दिन फिक्स करने जाएंगे कि ये फला दिन मिला, फला दिन मिला, फला दिन मिला, तो हर रोज अलग अलग ज़कात। बिगिनिंग टू एंड जो है वो टारगेट है आपके लिए। दरमियान में जो आए उन सबको आपको इसी साल के साथ में मिलाना है। तो रमजान से रमजान अगर आप साल लेके चलते हैं, तो एक दिन पहले भी अगर आपको मिलता है वेजिस या किसी तरह का मुनाफा, तो उसकी भी ज़कात आपको निकालनी पड़ेगी, चूंकि साल के खत्म होने से एक दिन पहले वो आपके पास में आ गया है। तो ये मसला आपकी बहुत आसानी के लिए है कि आप साल कैसे समझेंगे कि भाई एक साल पूरा गुजरना, ये बिगिनिंग टू एंड जो है वो निसाब में रहेगा, दरमियान वाला सब इसके साथ में मिला दिया जाएगा। जौहरा नैयरा सफा नंबर 155 पर ये मसला मौजूद है। आ, फकीर या वकील किसी को भी अगर आपने ज़कात दी है और अभी आपने नियत नहीं की थी, आपने लिल्लाह की नियत की थी, मुस्तहब सदका की नियत की थी, और फिर आपकी समझ में आया नहीं यार थोड़ी ज़कात बाकी रहेगी, उस पर ज़कात की नियत कर लो। हालांकि वो तो फकीर का आपने दे दिया, उसके पास चला गया, या वकील को आपने दे दिया, उसके पास में चला गया, तो अब आप अपनी नियत को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मसला ये है कि आपको फोन है, फोन करके पूछ लो कि भाई मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो तुमने खर्च कर लिए कि अभी है। अगर वो कहे कि खर्च कर लिए, तब अब नियत नहीं हो सकती, जो दिया वो उसी में चला गया। वो कहते नहीं अभी है, अभी खर्च नहीं किया है, तो आप अपनी नियत को बदल सकते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि अभी है, तो आप नियत कर लो कि वो जो उसको मैंने दिया है वो ज़कात है, तो अब आपके लिए ज़कात में चला जाएगा। वकील को आपने दिया, जैसे आप हमारी चैरिटी वगैरह में लिखाते हैं ज़कात, आपने पहले लिल्लाह करके लिखवाया था, फिर आपको याद है नहीं आया, इतना इतना हमारी ज़कात बाकी रहती है, उसको ज़कात ही में बदल दो, तो फिर आप हमें फोन करेंगे, मौलाना साहब जो आपको दिया था वो आप इस्तेमाल में ले आए हैं या अभी है। अगर कहे कि इस्तेमाल हो गया, तब नहीं बदल सकते। वो कहते नहीं अभी है, अभी तो रमजान के बाद इस्तेमाल में आएगा, तो फिर आप नियत कर सकते हैं कि तब तो मैंने उसको ज़कात में बदल दिया। तो नियत बाद में कब हो सकती है, ये एक शक वाला मसला था जिसको मैंने आपके सामने उजागर कर दिया है। वो ये मसला हिंदिया फतवा आलमगीर जिल्द अव्वल सफा नंबर 171 पर है। क्या साल से पहले ज़कात निकाली जा सकती है? यानी जैसे आपके रमज़ान टू रमज़ान आप साल लेके चलते हैं, और दरमियान में कोई हाजतमंद आ गया, तो आप चाहते हैं कि मैं ज़कात उसको दे दूँ, अभी तो साल पूरा नहीं हुआ है। तो मालिक निसाब का अगर साल ख़त्म नहीं होता है, उससे पहले भी अगर वो ज़कात निकालना चाहता है, तो मालिक निसाब को इजाज़त है कि वो दरमियाना साल में भी ज़कात निकाल सकता है। और फिर जब आपका साल एंड होगा, हिसाब कर लो कि भाई 500 पाउंड मेरी ज़कात है और 100 तो मैंने पहले दे दिया है, तो अब 400 की देनी है, और 100 आपकी हो गई है। तो साल पूरा होने से पहले भी ज़कात की नियत से ज़कात दी जाए, तो साल के एंड पर जो हिसाब होगा उसमें आप इसको इंक्लूड करके उसको डिडक्शन में ला सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए। ये भी फतवा आलमगीर जिल्द अव्वल सफा नंबर 176 पर ये मसला मौजूद है।
नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है और हमारी 1 आध साल की ज़कात से उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। जैसे किसी का मकान बनाना है तो 1 साल की ज़कात से थोड़ी ना ये काम हो जाएगा। या जैसे अपने इदारे बनाते हैं तो उसमें 1 आध रूम के अंदर आपको जाना है तो 1 आध साल की ज़कात से तो आप नहीं जा सकते हैं। तो आपने सोचा यार 1 आध 2 साल 2-3 साल की ज़कात अगर मिला ली जाए ना, तो ये काम हो जाएगा। तो इस्लाम आपको जो मालिक निसाब है उसको इजाजत मिली है कि वो पेशतर भी ज़कात निकालना चाहे तो निकाल सकता है। तो आप ये नियत कर लो कि भाई चलो ये दारुल यतामा अभी जो बन रहा है उसमें 1 रूम का 3000 पाउंड है, मुझे ज़कात से उसमें पैसा देना है, मगर मेरा तो 1 साल का जो है वो 1500 ही बनता है, 3 तो बनता नहीं है। तो आप दूसरे 1500 में ये नियत कर लो कि ये 1500 अभी मैं दे रहा हूं, उसमें भी मैंने ज़कात की नियत की आने वाले साल की, कि जो आने वाला साल है उसमें मेरी ज़कात होगी, इसमें से इतना डिडक्शन मैं ले आऊँगा। तो इस्लाम आपको इसका परमिशन देता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल की ज़कात भी एक साथ में निकालो। तो दुआ है कि अल्लाह आपको मालदारी रखे सालों में, तो आपकी जो ज़कात आएगी जितनी आपने एक्स्ट्रा निकाल दी उसको वहाँ भी आप हिसाब में ले जा सकते हैं। ये भी इस्लाम ने मालिक के निसाब को उसके काम, लोगों के काम या दीन के काम निकालने के लिए एक चॉइस अता फरमाई है। ये जो है ये भी फतवा हिंदिया जिल्द अव्वल सफा नंबर 176 पर ये भी मसला है। थोड़ा थोड़ा करके जक़ात निकालना, जैसे हमारे पास जक़ात है, हम साल भर में थोड़ा थोड़ा निकालते रहते, जो यहाँ हजतमंद दे दिया, हजतमंद दे दिया, नियत कर ली दे दिया, नियत कर ली दे दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर साल के एंड पर जब आप अपना हिसाब लगाएंगे और आपने कहा कि भाई जक़ात 1000 पाउंड बनती है और 500 पाउंड तो मैं दरमियाना साल ही में जरूरतमंदों को दे चुका हूं, तो अब आपको 500 ही निकालने, 1000 नहीं, चूंकि 500 आप दे चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी ज़कात निकालने की इजाजत है और पेशतर से भी निकालने की इजाजत है, मगर नीयत शर्त है। नीयत ज़कात की करेंगे तो फिर आपको इन सब की इजाजत मिल जाती है। तो ये भी फतवा हिंदिया जिल्द अव्वल सफा नंबर 176 पर ये मसला है। और आखिरी मसला कि क्या फकीर को ज़कात कह के देना जरूरी है या सिर्फ अपनी नीयत काफी है। तो इस्लाम ने यहां भी हमारा और दूसरे मुसलमानों के जज्बात का बहुत बहुत लिहाज किया है कि भाई किसी को भी, कितने आदमी ऐसे होते हैं कि बेचारे जरूरतमंद होते हैं मगर जक़ात के लफ्ज से उनको नफरत है, वो जक़ात के नाम से पैसा लेना नहीं चाहते या उसको पसंद नहीं करते हैं, और आप भी उनको उस नीयत से देंगे, नीयत तो करनी पड़ेगी, अल्फाज से देंगे तो आपको भी पसंद दिया गया जक़ात कह करके उनको दो। जैसे आपका भाई जरूरतमंद है और जक़ात ले सकता है और आप देंगे तो जक़ात कहेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपकी बहन बहुत जरूरतमंद है, उसको यहाँ भी आपके जज्बात मजरूह ना हो और दूसरे के जज्बात में आपको मुंह से ये कहना जरूरी नहीं कि मैं जक़ात कह के दे रहा हूं। दिल में नियत कर लो, आपको मालूम हो जाए जिसको दे रहा हूं वो जक़ात का हकदार है, तो आपकी जक़ात अदा हो जाएगी। कहना जरूरी नहीं है कि भी कह सकते हो मैंने गिफ्ट दिया, मैंने ईदी दी, मैं तुम्हारी यूं ही मदद कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बच्चों को दे रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं, कोई भी लफ्ज बोलो, जक़ात मत बोलो। ऐसे भी जरूरतमंदों की हेल्प हो सकती है। ये मसला भी फतवा हिंदिया जिल्द अव्वल सफा नंबर 171 पर लिखा हुआ है। तो ज़कात के बहुत सारे ज़रूरी मसाइल मैंने आपके सामने रखे, और भी अगर कोई ज़रूरत महसूस होगी तो इंशाल्लाह आइंदा कल फिर मैं उन मसाइल को भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, ताकि अभी जो ज़कात देनी होती है तो उसमें इन मसाइल पर हमारी वाकिफियत हो जाए तो हमारे लिए लेन देन बहुत आसान हो सकती है। मत भूलिएगा हमारा ऐलान के जामिया मोइनिया अजहर उलूम लिल बनात ये बन चुका है और चल भी चुका है, और आप उसमें स्पॉन्सरशिप में जाना चाहते हैं तो एक बच्चे का 300 पाउंड रखा गया, उसमें जो गरीब है उनके लिए ज़कात भी आप रख सकते हैं, और जो गरीब नहीं है उनमें लिल्लाह से भी आप मदद करके आलिमात बना सकते हैं और अपने लिए सदक़े जारिया कर सकते हैं। और इसी तरीके से अपना जो बड़ा प्रोजेक्ट है अभी का, वो दारुल यतामा है, चिश्तिया दारुल यतामा, जो भरूच के पास में नबीपुर और सूर्या के बीच में बनने जा रहा है। इसका काम लेवलिंग का शुरू हो गया है, बहुत जल्द वो तामीरी काम भी शुरू हो जाएगा। उसमें रमज़ान का मुक़द्दस महीना हम आपको मैसेज इसलिए पहुँचा रहे हैं कि आप ज़कात तो देनी ही है, सदका तो आप देते ही हैं। तो अगर थोड़ा-सा आप अगर ये ख़्याल फ़रमा लें कि मेरे लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में थोड़ी आसानी हो जाए,
تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں حصہ لیجیے. ہماری کمیونٹی کا یہ پہلا ادارہ بننے جا رہا ہے. اس سے پہلے اس نام سے کام نہیں کیا گیا ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو اس کی یاد دلاتا ہوں. مجھے امید ہے ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ بے حس نہیں ہے، وہ سنتے ہیں. اور سب کو گزارش ہے کہ اللہ سے توفیق مانگے تاکہ نیک کاموں میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی وہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی باتیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام ناظرین سامعین کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفت، بلیات، مصیبت، بیماریوں سے محفوظ فرمائے. رمضان کے ہمارے روزے، تراویح، عبادت سب کچھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.